Hi friends, hello and welcome to Competitive Kira. Today we are here with the part 2 of spotting errors and we are going to discuss the most important rules of subject verb agreement. So I hope that it will be helpful for all your upcoming exams. So without wasting much time, let's go to the first rule. This is a very simple rule. Two or more singular subjects connected by and usually take a verb in the plural. Okay, let's take an example and see. Rahul and Rohit is here. Okay, Rahul is a subject, Rohit is a subject, and both are connected by and. What the rule says? That if both the subjects are connected by and, then the verb should be plural. What is the verb here? Is. It is in singular, so it is incorrect. It should have been are. See the correct form? Rahul and Rohit are here. Okay. Let's go to the second rule. When two singular nouns refer to the same person or thing, the verb must be singular. See friends, let's take an example and understand this. The secretary and principal are coming. We are assuming that the secretary and the principal is the same person. So when it indicates the same person and it is connected by and, then the verb should not be plural. It should be singular because he is the same person. Though we are using two subjects, but it means that it is only one person. So the verb should be singular here. The secretary and principal is coming. This is correct and this is wrong. Now the rule number 3, if the singular subjects are preceded by each or every, the verb is usually singular. We had taken a similar example in part 1 of the spotting error video. So see the example. Every boy and girl were ready. So यहाँ पे रूल क्या बोल रहा है? अगर हम every यूज़ करें that means the verb should be singular. So ये हमारा गलत है. What should be the correct form? It should be every boy. Sorry friends, this spelling mistake. It should be every. Okay. Every boy and girl was ready. So this should be singular. So friends, see the rule number 4. Two or more singular subjects connected by or, nor, either or, neither, nor take a verb in the singular. Example देखते हैं. Neither she nor I were there. रूल क्या बोल रहा है? नाइदर नॉर है हमारा, तो यहाँ पे क्या होगा? वर्ब हमारा सिंगुलर होगा. दीज आर ऑल वेरी सिंपल रूल्स. सो हम रूल के हिसाब से जाएंगे तो ये कभी गलत होगा ही नहीं. आई वेयर देयर, ठीक है, तो ये हमारा गलत है, ये सिंगुलर होना चाहिए था. सो व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म? नाइदर सी नॉर आई वाज देयर. दिस वन इज करेक्ट. सी फ्रेंड्स, पहले जो रूल्स हमने देखे वो बहुत सिंपल थे, बट दिस वन इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. सो लेट्स मेक इट सिंपल. When the subjects joined by or nor are of different numbers, the verb must be plural and the plural subject must be placed next to the verb. Neither the students nor the headmaster was present. See friends, यहाँ पे हम दो रूल देखेंगे. एक तो ये कि वर्ब के पास हमेशा प्लूरल वाला सब्जेक्ट जाएगा. इफ़ वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल एंड हेडमास्टर इट इज सिंगुलर. ठीक है, प्लूरल और सिंगुलर दोनों है. सो विल हैपन नियर द वर्ब वाज दैट शुड बी द प्लूरल वर्ब. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? अगर हम वर्ब को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वर्ब को छोड़ दीजिए, ये सही है या गलत है हमें पता नहीं है अभी तक. नाइदर द हेडमास्टर नॉट द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट होना चाहिए था, क्योंकि हमेशा प्लूरल वाला सब्जेक्ट जाएगा वर्ब के पास. एंड जब वर्ब के पास जा रहा है तो वर्ब क्या होगा? वर्ब मस्ट बी प्लूरल. तो इसका पूरा सही फॉर्म क्या है? नाइदर द हेडमास्टर नॉट द स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट. ये और ये हमारा इंटरचेंज हो गया. ठीक है, इसका पोजीशन. सो द रूल नंबर 6. The subjects joined by or nor are of different persons. The verb agrees in person with the one nearest to it. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन टाइप के हो सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल में? आइदर सी और आई इज मिस्टेकन. सी हमारा किस में है? थर्ड पर्सन में. आई हमारा किस में है? फर्स्ट पर्सन में. तो यहाँ पे क्या होगा? आइदर सी और आई इज मिस्टेकन. वर्ब के पास कौन सा है? आई. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? आई के हिसाब से हमारा वर्ब होना चाहिए था. तो सही फॉर्म क्या होगा? आइदर सी और आई आम मिस्टेकन. ठीक है, ये आम,
This is correct and this is wrong. Now friends, the rule number 7. A collective noun takes a singular verb when the collection is thought as one and plural verb when the individuals of which it is composed are thought of. यहाँ पे ये रूल भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. क्यों? यहाँ पे दो रूल ले रहे हैं हम. जब हमारा कलेक्टिव नाउन हम ले रहे हैं, कलेक्टिव नाउन मतलब ये कमिटी, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है. वैसे ही काउंसिल वो हमारा कलेक्टिव नाउन है. तो यहाँ पे क्या होगा हमारा फ्रेंड्स? If we are taking it as a whole, the committee has chosen the president. ओके यहाँ पे हम कमिटी को एज ए होल ले रहे हैं. कमिटी जो डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट उसी के हिसाब से डिसाइड होंगे हमारे. सो दिस इज टेकन एज अ होल एंड व्हेन इट इज टेकन एज अ होल द वर्ब शुड बी सिंगुलर. सो दिस इज करेक्ट. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, जब हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल से कंपोज हो रहा है कलेक्टिव नाउन, तब उसमें क्या होगा देखते हैं. द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट. वहाँ पे हमने कमिटी लिया था, यहाँ पे भी हमने कमिटी लिया है. कलेक्टिव नाउन सेम है बट उसका यूज़ डिफरेंट है. सी द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट. इसका मतलब क्या है? कमिटी डिवाइडेड नहीं हुआ, कमिटी में जो इंडिविजुअल्स हैं उनका पॉइंट सब डिफर कर रहा है. ठीक है, एक पर्सन का एक पॉइंट, दूसरे पर्सन का दूसरा पॉइंट. तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? वर्ब हमारा सिंगुलर ना हो कि ये प्लूरल होगा. तो यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस ही सही हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स. When the plural noun denotes some specific quantity or amount considered as a whole, the verb is generally singular. 50,000 rupees are a large sum. ये सही है कि गलत? आपको क्या लग रहा है? सी रुपीज़ ये लग तो रहा है प्लूरल, बट यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स? अगर हम ले रहे हैं 50,000 रुपीज़, ये हमारा 50,000 ही है. ये 5 इंटू 10,000 नहीं है या 1 इंटू 50,000 नहीं है. ये बस 50,000 रुपीज़ है. ये मेरा नीड है. ओके, दिस इज टेकन एज अ होल. दिस इज a specific quantity. We cannot change it into multiples. So what will happen? This will be taken as singular and the verb will be singular here. So this should be is. करेक्ट फॉर्म देखते हैं. 50,000 रुपीज़ इज़ अ लार्ज सम. क्योंकि ये हमारा क्या हो रहा है? एक मतलब स्पेसिफिक क्वांटिटी मीन कर रहा है. वैसे ही हम अगर देखेंगे 10 किलोमीटर्स ले रहे हैं, 10 किलोमीटर्स हमें चलना है, तो वहाँ पे क्या होगा? 10 किलोमीटर्स को हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की तरह ले रहे हैं. तो एग्जाम्पल, words joined to a singular subject by with, together with, in addition to, or as well as etc. are parenthetical and therefore do not affect the number of the verb. So parenthetical मतलब फ्रेंड्स क्या है? ये सप्लीमेंट्री है, हमारा पैरेंथेसिस में है, ये हमारे सब्जेक्ट को अफेक्ट नहीं कर रहा है. सी द एग्जाम्पल, द चीफ विथ ऑल हिज मेन वेयर मर्डर्ड. चीफ का मर्डर हो गया एंड ऑल हिज मेन, उनका भी मर्डर हो गया. लेकिन यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है? चीफ विथ ऑल हिज मेन वेयर मर्डर. मेन है हमारा चीफ. हम ऑल हिज मेन जो है ना वो पैरेंथेसिस में है. तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट अगर चीफ हुआ तो वर्ब भी उसी के हिसाब से जाएगा. तो ये होना चाहिए था वाज, क्योंकि चीफ तो हमारा सिंगुलर में है ना, तो सिंगुलर होना चाहिए था. सी द करेक्ट फॉर्म, द चीफ विथ ऑल हिज मेन वाज मर्डर्ड. सो ये गलत है, ये सही है. नाउ द लास्ट रूल, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब. सी द न्यूज़ आर ट्रू. न्यूज़ ये हमारा क्या है? प्लूरल फॉर्म है. एस लग रहा है, हमारा प्लूरल फॉर्म है, बट सिंगुलर मीनिंग. न्यूज़ इज ट्रू. एक ही न्यूज़ है ना, एक ही न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम. वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल न्यूज़, सो इट शुड बी सिंगुलर and the word should be singular, it should be is. See the correct form, the news is true. So ये गलत है and this is correct. Friends, if you're watching our channel for the first time, then please subscribe us and see. If you have not seen the video number 1 part 1, then please watch it. We are giving the link in the description part. Please watch it. You will get a clearer idea about the
types of error we are getting in the exams. And if you are having any doubts, any queries, if you are having doubts on a particular area means I'm telling about verb or pronoun or noun, then please mail us at competitivekida@gmail.com and we'll be replying you for sure. Thanks.